प्रिंट निकाल लो, रख लो, बहुत काम आने वाली चीज है। एक्चुअली वो पेपर के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, लेकिन अभी मैं केमिस्ट्री का होता हूँ, केमिस्ट्री सेंड किया आप लोगों को। हम्म हम्म What is the IU first question? No, that is, हाँ, question number 46. Yes. Question number 46. What is the IUPAC nomenclature of this one? देख लो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH, कितने जितने क्वेश्चन होंगे ये आवर में उतने ही बेटा, रिमेनिंग का की मिल जाएगा प्लीज। मीन्स आप सपोर्ट करेंगे तो पूरे क्वेश्चंस होते, ऐसा है। CH2OH. What is the IUPAC nomenclature of this compound? IUPAC nomenclature of this compound is, first of all, carboxylic acid is the main functional group, please. Okay. Carboxylic acid is the main functional group. 1, 2, 3. At second position there is a amine group. It means 2 amino. 2 amino वाले दो ही ऑप्शन है, either second or third. 3 hydroxy एक ही है, so option 3 is correct. Option 3 is correct. Clear सबका? फास्ट रिप्लाई देना है, ऐसा नहीं कोई एक दो का रिप्लाई नहीं चाहिए मेरे को, सबका चाहिए। वॉइस क्लियर है बेटा? वॉइस क्लियर है बेटा? वॉइस क्लियर है सब? मेरा आ रहा वॉइस? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो मैं भी उतना एक्टिव नहीं वर्क कर सकता। नंबर ऑफ acyclic isomers with molecular formula C4H10O. How many isomers are possible बोला इन्होंने? असाइक्लिक बोला, साइक्लिक नहीं बोला। बनाओ, अल्कोहल बनता अल्कोहल बनाओ, ईथर बनता ईथर बनाओ, aldehyde बनता aldehyde बनाओ, कीटोन बनता कीटोन बनाओ। So option 1 is correct. There are 7 isomers are possible. एसाइक्लिक आइसोमर्स कौन से बनेंगे? ये फंक्शनल ग्रुप वाला बनेगा, अल्कोहल्स बनेंगे, ईथर्स बनेंगे, aldehydes बनेंगे एंड कीटोन्स बनेंगे। aldehydes एंड कीटोन्स, यस, aldehydes एंड कीटोन्स। ओके बेटा, चलो किसी को डाउट आ रहा तो देख लो, मेरे से जो मालूम है वो करके बता देता। C4H10O, यस, 1 2 3 4, यस, OH ये बन गया। CH3 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8 9 10, यस। अल्कोहल का ये प्राइमरी अल्कोहल है ना, अब सेकेंडरी अल्कोहल बनाओ, यस। ये सेकेंडरी अल्कोहल 1 2 3 4, इन दोनों ईथर से 4 कार्बन वाला ईथर ये बनेगा, और एक एक ईथर बनेगा 1 कार्बन है, मींस ऐसे वाला। ओके, काउंट करिए आप। नेक्स्ट aldehyde, सॉरी, 1 2 3 4, CHO, CH3 CH2 CH2 3 4 5 6 7, 10 हो रहे क्या देखो एक बार, यस। CH3 CH2 CH2 OH, यस। नेक्स्ट वन, और कोई आइसोमर इसका बन सकता ना, और टेरिशरी अल्कोहल भी बनता ना बेटा, दिस इज टेरिशरी अल्कोहल है ना, यस, वेरी गुड। और एक ईथर कौन सा बनेगा ये देख लो, टेरिशरी अल्कोहल में इस साइड में लिखता। अरे ये बनाओ यार, ये टाइम बहुत वेस्ट होता है इसे। ये टेरिशरी अल्कोहल ईथर बना रहे तो ये ईथर बनेगा,
ऐसे मैक्सिमम 7 isomers बनेंगे बेटा. Yes. So option A is correct for question number 47. Then question number 48. There is a 1-methoxy 1,3 butadiene. Which of the following resonating structure is least stable? Least stable. I am simply saying less separation of the charge, less is the stability. Yes. So इसके लिए option 3 is correct. Option 3 is correct. Question number 49. In the following carbocation, HCl3 is the most likely to migrate to the positively charged carbon is, yes, number 49 वाला डिस्कस कर रहे थे हम लोगों ने. Hydrogen at C2 carbon atom, it is shifted to this one. क्या बोल रहा है? In the following carbocation, hydrogen CH3 that is most likely to migrate to positively charged carbon atom, hydrogen shift होगा. Yes, hydrogen at C2. Fourth option is correct. Yes. Next question number 15. Question number 15. In question number 50, arrange the basicity of the following. अरे ये question बहुत important है रे बापा. NCERT textbook के related है. Yes, everyone have to read this one. Question number 15. Arrange the basicity of the following compounds. Which one is correct? Basicity कैसा देखा जाता? Yes. Which is easily donating its lone pair. Lone pair को donate जो करेगा उसको. Yes. मैंने बोलता ऑर्डर फर्स्ट होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन 1 के अंदर NH2 group is bonded to sp3 hybridized carbon atom. In second, NH2 group is bonded to sp2 carbon atom. In 3, NH2 group is bonded to sp hybridized carbon atom, and in fourth, NH2 is bonded to phenyl group. Yes, the lone pair which is present in this phenyl group, it is participating in resonance, so unable to donate. sp3 hybridized carbon atom is less electronegative. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहा तो लोन पेयर को लेने का टेंडेंसी लेस होता, तो इजीली डोनेट करेगा. सो दैट्स व्हाई द ऑर्डर इज 1 is greater than 2, 2 is greater than 3, 3 is greater than 4. So option 1 is correct. Question number 50. Question number 51. The formation of cyanohydrin from a ketone is example of. याद है cyanohydrin? Alcohols को addition करेंगे हम. Alcohols when they are added. Alcohols when they are added to aldehydes or ketones, cyanohydrins are formed. Sorry, KCN का. It is a nucleophilic addition. कैसे रहता बेटा? इधर देखो.
Cyanohydrin. So it is a nucleophilic addition reaction. So nucleophilic addition reaction हो गया तो option 2 is correct. Option 2 is correct. Yes. Next question number 52. The ratio of percentage of carbon hydrogen in organic compound is. Question number 52. Carbon hydrogen ratio is equal to 6:1 and 51 का भी तो बताया ना, कंस हो गया था क्या तू? हो रे, carbon hydrogen is in the 6:1 ratio and that of between carbon and oxygen is 3:4. The empirical formula, carbon and oxygen ratio is 3:4. What is the molecular formula of the compound? Molecular formula of the compound. हाँ, मीन्स अरे नहीं यार, अभी तो एक्सप्लेनेशन दिया और बोलते कि वो दो. कार्बन हाइड्रोजन 6:1 रेशियो में मीन्स 6 कार्बन है 1 हाइड्रोजन है. चलो इसको रखो. कार्बन ऑक्सीजन रेशियो 3:4. इट मीन्स C3O4. C3O4. हाँ, व्हाट इज द इंपेरिकल फार्मूला बोल के पूछा गया यहाँ. देन द रेशियो ऑफ दिस वन इज CH2O आएगा इस. कैसे होता बोल के बोले तो हम लोग क्लासरूम में करे वाला एग्जाम्पल, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन का कितना दिया इन्होंने रेशियो? 6:1 दिया. मीन्स 6 कार्बन एटम्स आर देयर, 1 हाइड्रोजन इज देयर. कार्बन एंड ऑक्सीजन का 3 and 4. सो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 6 है, इसके साथ 4 है, तो इन दोनों का कितना बनेगा? यस, ये सॉल्यूशन में सेंड करेगा इसका 52 का बना के देखना एक बार. क्वेश्चन नंबर 53. 52 का मेरे साइड आ गया बेटा, मैं बताता हूँ. 52. यस. नेक्स्ट 53. नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड. नाइट्रोबेंजीन कौन है? बेंजीन के ऊपर NO2. नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन. बेंजीन से प्रिपेयर किया जा रहा बाय यूजिंग नाइट्रेशन मिक्सचर. अरे नाइट्रिक एसिड इट एक्ट्स एज ये. नाइट्रिक एसिड कैसे एक्ट करेगा? इट एक्ट्स एज ए बेस. यस, 100% इट एक्ट्स एज ए बेस रे बेटा. ये बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ. HNO3 है ना, इसको डिसोसिएट करे तो NO2 प्लस होगा प्लस OH माइनस होगा. NO2 प्लस. It acts as a base and electrophile. NO2 plus is a electrophile. HNO3 it acts as a electrophile because sulfuric acid more acidic than nitric acid. That's why. So 53 के लिए, क्वेश्चन नंबर 53 के लिए ऑप्शन 1 is correct. Next question number 54. In which of the following reaction addition does not occur according to Markovnikov rule? A very good question. Markovnikov तो सबको आना चाहिए. Yes. 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 According to नहीं होगा Markovnikov rule बोलते हो, थर्ड में नहीं होगा. क्यों नहीं होगा बोल के बोले तो वो सिमेट्रिकल आल्कीन है. सिमेट्रिकल आल्कीन में कहां पे भी जाके कैसे भी करेगा. मेरी बात समझ रहे क्या? ऑप्शन 3 is correct because it is a
unsymmetrical alkene. Sorry, it is a symmetrical alkene. It is a symmetrical alkene. In symmetrical alkenes, negative part attack any carbon atom. So 54 के लिए third option is correct. Next question number 55. बेटा मैं अब बोलने के बाद नहीं भी समझा होगा तो मेरे को मैसेज करिए प्लीज. यस, अभी 1 आवर के बाद मैं आपको 2 o'clock या 3 o'clock और एक एक पेपर भेजेगा, उसका भी सॉल्व करिए. देन आप सॉल्व करिए आज और वी विल डिस्कस टुमारो. क्वेश्चन नंबर 55. आइडेंटिफाई Z इन द रिएक्शन. हाँ, प्रोपनॉल है. मीथ ईथ प्रोपनॉल. When it is treated with concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid at 160 to 180 डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों ने ट्रीट करवा. एक्स क्या बनेगा? एक्स का क्या बनेगा बोलते, क्या बनेगा यहाँ पे? माइनस H2O होगा, डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन होगा तो आल्कीन फॉर्म करेगा. आल्कीन फॉर्म होगा. ये आल्कीन है. आल्कीन फर्दर रिएक्ट विद Br2. It gives rise to Br and Br. Yes. Yes, Br and Br. Then it is treated with alcoholic KOH. Alcoholic KOH NaNH2 का काम है माइनस HBr करेंगे. 2 HBr निकाले तो आने वाला प्रोपाइन होगा. प्रोपाइन. मीथ ईथ प्रोप, इट इज प्रोपाइन. यस, इजी क्वेश्चन था ये भी. 55 के लिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट. 55 के लिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट. So option 4 is correct for question number 55. Now question number 56. Pick out the incorrect statement. The end products of combustion of paraffins or carboxylic acid. Yes, correct है. Carboxylic acid. Cyclohexane floats on water. मेरे को तो नहीं. हाँ, नहीं, एक मिनट सुनो. एंड प्रोडक्ट नहीं है. कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, वाटर आएगा. पैराफिन्स फ्लोट्स ऑन वाटर, नहीं, कभी नहीं होगा. पैराफिन्स आर इनसॉल्युबल इन बेंजीन, नहीं, क्योंकि पैराफिन्स बोल तो अल्केन्स है. अल्केन्स नॉन पोलर है. बेंजीन, हाँ, बेंजीन भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है, बट सॉल्युबल होगा. The density of paraffins is higher than that of water. That is correct. मेरे को ऐसे लग रहा ए बी, ए नहीं, बी तो नहीं, एक मिनट, ए सी डी मेरे को करेक्ट नहीं लग रहा. द स्ट्रक्चर ऑफ XCO2F2. अरे भाई बहुत बार डिस्कस किया है, तो केमिकल बॉन्डिंग में भी आया, ग्रुप 18 एलिमेंट्स में भी आया. अब ये केमिकल बॉन्डिंग 11th का पेपर है, तो केमिकल बॉन्डिंग में ही हम कंसीडर करेंगे. हाँ, बोलो, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? हाँ, बोल सकते तो बोल लो. जेनॉन के वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. Among these 8 electrons, 4 electrons are bonded with oxygen, 2 electrons are bonded with fluorine. टोटल 6 चले गए. अभी 2 रहते, मीन्स एक लोन पेयर बचे वाला रहेगा, तो तब उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल.
इसके लिए भी 2 ऑप्शन इज करेक्ट. Yes. Question number 58. In dichromate dianion, dichromate, potassium dichromate, K2Cr2O7, Cr2O7 -2 EA वाला है. ये डाइक्रोमेट एनायन है. डाइक्रोमेट डायनायन में क्या क्या रहेगा? यस. कैसे होगा? क्रोमियम, क्रोमियम देखिए ना, Cr2O7 -2, क्रोमियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 Cr और बॉन्ड्स आर इक्वल. ये जो बॉन्ड्स है ना बेटा, ये ऑल दीज बॉन्ड्स आर सिमिलर इन डाइक्रोमेट आयन. एक बार क्या करना होगा इसके लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट देखना होगा. नहीं, डायग्राम है नोट्स में आपके. यस. क्वेश्चन नंबर 59. वेयर डेटिव बॉन्ड इज नॉट इन्वॉल्व. डेटिव बॉन्ड का इन्वॉल्व कहां पे नहीं होगा? अरे डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड क्या है? दिस इज C डबल बॉन्ड O OH है ये. इसका डाइमराइजेशन कैसे होगा? इन्हें और एक मोल को लेंगे, C डबल बॉन्ड O OH. इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, सो वो डेटिव बॉन्ड नहीं हो सकता. सो दैट्स व्हाई in dimerization of benzoic acid, dative bond is nothing but, that is, coordinate covalent bond is not involved. So that's why for question number 59, option C is correct. Yes. Next question number 60. Question number 60. Consider the following species. Among these species, sigma bond alone present. एक ही sigma bond, only sigma bond रहने वाला species कौन सा है बोल रहा है इन्होंने. O2 -2. ये दे O -1 peroxide. ओनली सिग्मा बॉन्ड होगा. CO प्लस में तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, O2 प्लस में भी होगा डबल बॉन्ड. So alone sigma bond is present in peroxide ion. O2 -2, it is called peroxide ion. Yes. Next to 61. Fluorine does not form any polyhalide as other halogens because polyhalides, carbon tetrachloride, carbon tetrabromide ऐसे होता ना, polyhalides. Yes. Why it does not form? Simply, in fluorine there is the atomic number is 9. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p5. In this fluorine there is no d orbitals. Due to absence of d orbitals, it does not form polyhalides. Absence of d orbitals, it does not form polyhalides. Okay. Yes. Next question number 62. The species which has the lowest ionization potential among is. आप ही बोलो. सिंपल सी बात है,
अभी एक स्पीशीज है, कोई तो एक स्पीशीज है, कोई भी स्पीशीज, इसके और दूसरे स्पीशीज +1 है, +2 है, +3, ये कौन से भी रहने दो, इसके न्यूट्रल का बहुत लीस्ट रहेगा आयोनाइजेशन। तो इसलिए बोल रहा मैंने एल्यूमिनियम हैविंग द लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सर मैग्नीशियम भी, आप मैग्नीशियम क्यों नहीं लिए? इन ये पर्टिकुलर पीरियड, इन ये पर्टिकुलर पीरियड आफ्टर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आएगा। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम है ना बेटा? आफ्टर मैग्नीशियम ओनली देयर इज ए एल्यूमिनियम आयन। along the period आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा आपको? इंक्रीजेस। तो उन्हें तो पूछा कि लोएस्ट कौन सा है बोल के, तो एल्यूमिनियम होगा। नहीं यार, ये डाउट है थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पे। 62 का देखेंगे यार एक बार। which has the lowest ionization potential among the following? मैग्नीशियम होगा, सॉरी ऑप्शन 4 होगा 62 के लिए। यस। (63) which of the following anions are most easily polarized? मोस्ट इजीली पोलराइज्ड कौन सा हो सकता है बोल के पूछ रहा है। हाँ, कौन सा था रे बेटा वो क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा मैं बोलो एक बार, वो डाउट आ रहा क्वेश्चन का मेरे को। 59, 60, 61, 62 का 62 के लिए अब ऑप्शन 1 बता रहा यार। आई विल चेक। हाँ देखेंगे देखेंगे। हाँ देखेंगे बेटा। नेक्स्ट 63 which of the following anions are most easily polarized? अरे क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, सिलीनियम आयन है, टेलुरियम आयन है। जब से नीचे जो रहेगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। नहीं समझ रहे बात को, सुनो बोलता हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यस। इससे पहले कौन सा ग्रुप होगा? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, नीचे पोलोनियम। अब ये यहाँ पे 4 कौन से मेंबर्स है? फ्लोरीन, क्लोरीन, सिलीनियम, टेलुरियम है। जो सबसे नीचे ज्यादा होगा उसका पोलराइजेशन इजी होगा। तो टेलुरियम आयन। क्वेश्चन नंबर 64 मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ NaCl, NaBr, Na, NaF will be in order। आप बोलो ना यार थोड़ा सा इसका। यस, NaI लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि एक सिंपल सी बात बोलता है, ऑल आर आयनिक ना, जितना स्मॉलर एनायन होगा उतना स्ट्रांग बॉन्ड होगा, इसलिए सो ऑप्शन ए इज करेक्ट 1 ड्यू टू स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड। बोलो। यस। क्वेश्चन नंबर 65 which of the following molecule is polar? polar means चार्जेस रहना चाहिए। हाँ ClO2 होता है, और क्या है? हाँ
इट इज मोर बोला। हाँ यस। अरे और सारे क्वेश्चन है बेटा, वो डिस्कस करिए, मेरे को बोलो, मैं और आपको एक्सप्लेन करेगा। अभी टाइम की वजह से ये हो रहा, ओवरलैप हो रहा। बट प्रैक्टिस करो बेटा, कोई भी क्वेश्चन, मैं आंसर की भी भेज रहा अभी आपको, अभी 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 भेज रहा। यस यस, इन फ्यू मिनट्स। हाँ आई विल सेंड। ए बात मत करो, ठहरो जी। हाँ यस बेटा, आई विल सेंड, देख लो, चेक कर लो। ओके